ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 13 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PCS ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ PLSB ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ 3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥਰਸਡੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼, ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੱਸ ਸੰਡੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ MCQs ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਾਰਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਡੇ 8 ਦਸੰਬਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 8 ਦਸੰਬਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਦਸੰਬਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਢਾਕਾ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਢਾਕਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਦੀ 37th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। 37th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰਕ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 8 ਦਸੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਯੂਅਰ ਰੋਲ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਯੂਅਰ ਰੋਲ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੀ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ USA ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। USA ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਇਸੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ NHRC ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਕਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਜੀਨੋਸਾਈਡ and of the prevention of crime is observed on 9th December. International Day of Commemoration and Dignity of Victims of Crime of Genocide. Genocide ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਮਰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल दंगे हो जाना। ठीक है। अगर आप गल करते हैं गुजरात राइट्स बारे हर एक ने सुना होगा, गुजरात के दंगिਆਂ बारे। तो गुजरात के जो दंगे होए सी उसदे विच की होया सी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की डैथ हुई सी। ठीक है। या पंजाब के 84 के दंगिਆਂ की अगर आप गल करिए, पंजाब के 1984 के
काफ़ी ज़्यादा लोगों की डैथ हुई सी, उसनों जीनोसाइड कहा जाता है, मास मर्डर नूं कहा जाता है जीनोसाइड। ठीक है, तो उस दे विच कुछ बेगुनाह लोग ने जो वो मारे जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो इसनूं रोकण की कोशिश करते हैं, जो इसनूं रोकण की कोशिश करते हैं वो भी मारे जाते हैं, उन्होंने भी वो भी जख्मी होंगे ने, उन्हों का भी नुकसान होंदा। तो इस दिन दे लई इस दिन नूं ऑबजर्व किया जाता है, इसनूं याद करने के लिए, रिमैंबर करने के लिए, और दूसरा इसनूं प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है जी, कदों 9 दिसंबर। नेक्स्ट है, कैबिनेट हैज़ सेलिब्रेटेड 75th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली ऑन 9th of December in 1946. The first meeting was organized. कैबिनेट ने की करिया 9 दसंबर ਨੂੰ 75ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। 75ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ? ਫਰਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 75ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ कदों की गई सी? 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ। ठीक है जी, की कोई अगर पॉलिटी के बेसिस से क्वेश्चन पूछ लेने, कई बार SSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, SSC ਦਾ ਕਾਫੀ ਫੇਵਰਟ क्वेश्चन है ये, और पंजाब ਦੇ ਲੈਵਲ एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ भी कई बार इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ कि कौन बनाए गए सी, कौन पहले प्रेजिडेंट बनाए गए सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे। मैं इंडिया के प्रेजिडेंट की गल नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की गल कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के प्रेजिडेंट कौन बनाए गए सी 9 दिसंबर को? ठीक है जी, कमेंट बॉक्स के विच 2 क्वेश्चन हो गए ने अज दे। नेक्स्ट है, रोहित शर्मा इज नेम्ड एज कैप्टन ऑफ ODI एंड T20। ODI वन डे इंटरनेशनल मैचिज और T20 इंटरनेशनल मैचिज के लिए BCCI वालों जो ऑल इंडिया सिलैक्शन कमेटी है, ऑल इंडिया सिलैक्शन कमेटी है क्रिकेट की, उस द्वारा सिलैक्ट किया गया रोहित शर्मा का नाम। ठीक है जी, BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है जी, तो BCCI की गल करते हैं। सौरभ गांगुली, ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट, हैडकुआटर मुंबई के, और सौरभ गांगुली इसके प्रेजिडेंट ने। कौन ने? प्रेजिडेंट ने। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स न्यूज़ के ही प्रांजला यलपल्ली वॉन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का वर्ल्ड चैंपियनशिप वूमेन सिंगल्स टाइटल। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप दे विच वूमेन सिंगल्स टाइटल जीते, वूमेन सिंगल्स टाइटल जो कि बेंगलोर दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है जी, किसने? प्रांजला यलपल्ली ने। तो डायरैक्टली वन लाइनर के याद रखेंगे, प्रांजला यलपल्ली किस खेल तो बिलोंग करते हैं? टेनिस तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया कि यूएसए ने की करिया? बायकाट कर दिता। यूएसए द्वारा बायकाट किया गया बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का। यूएसए के डिप्लोमैट्स द्वारा बीजिंग ओलंपिक्स का बायकाट किया गया सी ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ के रिलेटेड। ठीक है, आप हुणे ह्यूमन राइट्स डे डिस्कस किया। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा द्वारा भी बायकाट किया जा रहा है। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया दूसरी कंट्री बन गई है, कैनेडा तीसरी ऐसी कंट्री बन गई है जिसने चाइना दे बीजिंग ओलंपिक्स के विच कह सकते हैं, या 2022 के विंटर ओलंपिक्स के बारे कह सकते हैं, इसका बायकाट किया। ठीक है जी, इसके मैस्कोट का नाम की है? बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के मैस्कोट का नाम स्माइलिंग पांडा। नेक्स्ट आप डिस्कस किया है कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है जो 2021 की ताशकंद के विच ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है, ये हजे ऑर्गेनाइज की जा रही है, बेसिकली आई थिंक 17 दिसंबर तक चलेगी। इस दे विच जिन्ने भी मैडल्स आएंगे आप डिस्कस कर लाँगे, लेकिन जो हुण तक के मैडल्स ने, जो इंपॉर्टेंट नाम बन रहे हैं, उन्होंने बारे कुछ हल्का जा डिस्कस करांगे। सब तो पहले अगर आप गल करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स अगर स्टैटिक के वाल चलीए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के ऑर्गेनाइज किए जाने, कितने?
2022 ਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਮਿੰਗਮ यूके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 2022 ਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ। ठीक है जी। इसी तरीके नाल ਕਾਮਨਵੈਲਥ यूथ गेम्स डिस्कस किया सी आपां ने, ਉਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਰਨਾਡ ਐਂਡ ਟੋਬਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤਰਨਾਡ ਐਂਡ ਟੋਬਾਗੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जो ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ है 2021 ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਕਿਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ? ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਤਾਸ਼ਕੰਦ, ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਡਲਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਸੰਕਟ ਮਹਾਦੇਵ ਸਰਗਾਰ ਦਾ। ਸੰਕੇਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਰਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਜੈਰਮੀ ਲੈਰਿਨਗੁਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਐਸ ਵਿਦਿਆ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਲੀ ਧਲਬੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ठीक है जी। तो अपने लिए डायरैक्टली स्पोर्ट्स परसन के नाम पूछे जाएंगे। काफ़ी रेयर चांस है कि वैरी रेयर अगर आप कहेंगे SSC तक के बड़े एग्जाम्स के नहीं पूछा जाता कि इस परसन द्वारा केड़ा मैडल जितया गया, इस तरीके की चैंपीयनशिप के इस परसन द्वारा केड़ा मैडल जितया गया, ये नहीं पूछा जाता। पूछा जाएगा जो टोटल मैडल्स पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे, या वैन्यू मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, वैन्यू केड़ा है, या स्पोर्ट्स परसन के उत्ते स्टैटिक दे विच क्वेश्चन पूछे जाते कि यह स्पोर्ट्स परसन किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करता है। तो संकेत महादेव सरगार, जेरेमी लारिनगुआ, एस विद्या रानी देवी और जिली धलबेरा ये चारों किस तो बिलोंग करते हैं? वेट लिफ्टिंग तो बिलोंग करते। ठीक है जी। नेक्स्ट है एशले बार्टी is named as World Tennis Association Player of the Year Award। World Tennis Association ਦੀ Player of the Year Award ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ। ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਟੈਨਿਸ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 2021 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इसी दे नाल ईमा राडुकानू न्यू कमर ऑफ द ईयर दे नाल सन्मानित किया गया। ईमा राडुकानू का नाम न्यू कमर ऑफ द ईयर दे नाल सन्मानित किया गया। नेक्स्ट है मणिपुर हैज़ वॉन नेशनल सीनियर फुटबॉल चैंपीयनशिप 2021। ਆਪਾਂ कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी कि नैशनल सीनियर फुटबॉल चैंपीयनशिप है जो 2021 ਦੀ ਇਹ केरला द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसनों कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? केरला ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया गया। मणिपुर ने इसनों जित लिया। मणिपुर द्वारा इसनों जित लिया गया बाय डिफीटिंग रेलवेज ਨੂੰ हरा के मणिपुर स्टेट ਦੀ टीम द्वारा इसनों जित लिया गया। नीरज चोपड़ा और PV सिंधु। नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रो तो बिलोंग करते हैं, PV सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर ने, दोनों इंडियन प्लेयर ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम ने। रिसेंटली इन्हों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाल भी सन्मानित किया गया है। और नीरज चोपड़ा रिसेंटली गोल्ड मैडल लेके आए सी ओलंपिक्स दे विच। ठीक है जी, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट नाम ने। और इन्हों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बायजूस दी अर्ली लर्न एप्लीकेशन का। डिजनी बायजूस दी जो अर्ली लर्न एप्लीकेशन है, इस दे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। वैसे बायजूस दे एम्बेसडर कौन ने अगर पूछा जाए तो बायजूस दे ब्रांड एम्बेसडर ने शाहरुख खान। बायजूस दे ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। और अच्छा डिजनी की गल करते हैं, डिजनी के बारे भी आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया कि डिजनी के हैड पहली बार वूमेन बनाए गए सी। समथिंग सुजैन अर्नोल्ड नाम से, शायद सुजैन अर्नोल्ड नाम दे वूमेन फर्स्ट वूमेन चेयरमैन बनाए गए सी डिजनी दे। नेक्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट CDS। इस न्यूज़ के बारे हर एक ने सुन लिया होगा। ठीक है, हर एक पर्सन ऐसा होएगा जिसने इस न्यूज़ में सुन लिया होएगा हुण तक कि इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्लेन क्रैश के विच डेथ हो गई। ठीक है जी, हर एक ने सुनी होएगी खबर, काफ़ी हर एक न्यूज़ चैनल ने कवर करी है, हर एक सोशल मीडिया के उत्ते इस दे रिलेटेड देखा गया।
लेकिन जो अपने एग्जाम परस्पैक्टिव के लिए क्वेश्चन बननगे वो आप डिस्कस कर लेंगे। CDS की पोस्ट किस चीज़ की पोस्ट है? CDS बेसिकली जो आर्मी की पोस्ट है, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ, तिन्हों रैगूलेट करने के लिए तिन्हों के उपर एक हैड बना दिते गए जो पोस्ट क्रिएट की गई CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पोस्ट बेसिकली 2019 के क्रिएट की गई और 1 जनवरी 2020 के 1 जनवरी 2020 तो पहले CDS अपॉइंट किए गए सी। तो कौन अपॉइंट किए गए सी? यह अपॉइंट किए गए सी जनरल बिपिन रावत। इन्हों की डैथ हो गई प्लेन क्रैश के, प्लेन क्रैश कह सकते हैं या हैलीकॉप्टर क्रैश। हैलीकॉप्टर का नाम पूछ लिया जाएगा, हैलीकॉप्टर का नाम रहेगा इंपोर्टेंट MI-17। MI-17 का V5 हैलीकॉप्टर सी, MI-17 का V5 हैलीकॉप्टर क्रैश हुआ सी। अगर आप गल करते हैं डिफेंस लैवल के एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल रीसेंटली DRDO का एग्जाम होया सी या उस तो पहले होर भी इंपोर्टेंट जो डिफेंस के एग्जाम्स ने उत्थे इस तरीके का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। दूसरा क्रैश कितने होया? तमिलनाडु के, तमिलनाडु के क्रैश होया सी। ठीक है, हालांकि इन्हों की वाइफ की भी डेथ हो गई सी, होर भी काफ़ी परसन से तकरीबन 11 या 12 लोग इस प्लेन के जिन्हों की डेथ हुई है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखेंगे। इस तो इलावा इंडिया के फर्स्ट वूमेन साइकैट्रिस्ट, इंडिया के पहले वूमेन साइकैट्रिस्ट मनोचिकित्सक शरदा मैनन, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है, इन्हों की भी रिसेंटली डेथ हो गई है। इन्हों आई थिंक पद्म भूषण के नाल सन्मानित किया गया सी 1992 के। चलो अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, सिंपली याद रखेंगे शारदा मैनन इंडिया के पहले वूमेन साइकैट्रिस्ट थे जिन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई। अच्छा, हुण अगर आप गल करिए कि CDS की, हुणे आप गल की कि CDS एक पोस्ट है जो कि क्रिएट की गई सी, तो हुण अगर इन्हों की डेथ हो गई है, पोस्ट खाली हो गई है, पोस्ट के उत्ते किसी न किसी को बिठाया जाएगा, तो CDS की पोस्ट के लिए नाम रिकमेंड किया जा चुका है मनोज मुकुंद नरवाणे का। मनोज मुकुंद नरवाणे, MM नरवाणे ने जो इन्हों का नाम रिकमेंड किया जा चुका है। ठीक है जी, ये कौन ने? ये आर्मी चीफ ने, इंडिया के करंट आर्मी चीफ ने। इसी तरीके नाल नेवी चीफ बिल्कुल रिसेंटली बनाए गए ने H हरी कुमार। ठीक है, याद रखांगे। और इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं एयरफोर्स के चीफ की, तो VK चौधरी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है संजीव मेहता जो कि CMD ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड दे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ने जो आप डिस्कस कर रहे हैं। सब तो पहले संजीव मेहता जो कि CMD ने, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरैक्टर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड दे, इन्हों का अपॉइंटमेंट किया गया फिकी के प्रेजिडेंट के तौर पर। फिकी के प्रेजिडेंट बनाए जाएंगे उदय शंकर को रिप्लेस करके फिकी के प्रेजिडेंट कौन बनाए जाएंगे? संजीव मेहता। फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी की फुल फॉर्म है, और इसके चेयरमैन बनाए जाएंगे संजीव मेहता। इतीरा देविस MD CEO बनाए गए ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इंडिया के टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की गल करिए तो 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिसेंटली एक नवा जोड़ दिता गया, टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस इंडिया के हो चुके हैं। ठीक है जी, सब तो पहला क्वेश्चन यह काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो लेटेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया उसका नाम कॉमेंट बॉक्स भी तुसीं दसना। अज का तीसरा क्वेश्चन जो आप रिसेंटली डिस्कस किया सी, लेटेस्ट है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया है जिसका हैडकुआटर न्यू दिल्ली है, उसका नाम दसना। 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस तो इलावा जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हैडकुआटर बेंगलोर के है, इसको 2004 के बनाया गया सी, और इसके MD CEO बनाए गए हैं इतीरा देविस। श्रीकांत माधव वैद्य SM वैद्या ने जो एक चेयरमैन बनाए गए, SM वैद्या चेयरमैन ने जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के IOC रिसेंटली डिस्कस की थी, रिसेंट ही अपॉइंटमेंट है। SM वैद्य श्रीकांत माधव वैद्य चेयरमैन बनाए गए सी IOC के। इन्हों इलैक्ट किया गया एज ए प्रेजिडेंट के तौर पर वर्ल्ड LPG एसोसीएशन, वर्ल्ड लैवल के उत्ते जो LPG एसोसीएशन है WLPGA,
इस दे चेयरमैन या प्रेसिडेंट कह सकते हैं कौन बनाए गए ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हैड श्रीकांत माधव वैद्य। दूसरे इंडियन बने ने हुण तक की हिस्टरी दे विच दूसरे इंडियन बने ने, पहले 2008 दे विच बनाए गए सी। इसका हैडकुआटर पैरिस फ्रांस दे विच, इसका हैडकुआटर पैरिस फ्रांस दे विच। नेक्स्ट है विवेक पॉल। विवेक पॉल हैज़ बीन ऑनर्ड with the title of Asia's most creative entrepreneur। एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रीनियर का टाइटल दिता गया, अवार्ड दिता गया 15th एडिशन ऑफ एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम दे विच, जो कि दुबई दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। विवेक पॉल ने जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन ने, अगर आप गल करते हैं बेसिकली फाउंडर ने, जो द ग्रेट इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, द ग्रेट इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, इस दे फाउंडर ने जो कि काफ़ी फेमस है शॉर्ट फिल्म्स वगैरह के लिए, उसके फाउंडर ने विवेक पॉल। इन्हों एशिया का मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिता गया। एशिया का मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दुबई के दिता गया। कित्थे दिता गया? दुबई के। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस शरद अरविंद बॉबडे, शरद अरविंद बॉबडे जो कि 47वें नंबर के चीफ जस्टिस थे। इन्हों तो बाद जो 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ने कौन ने? NV रमाणा। ठीक है जी। इन्होंने बुक रिलीज़ की है, इन्होंने बुक रिलीज़ की है जस्टिस फॉर द जज। जस्टिस फॉर द जज नाम की बुक है। ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गंगोई की। ठीक है जी। तो न्यूज़ किस तरीके नाल है कि एक बुक जो ऑटोबायोग्राफी है जस्टिस फॉर द जज, जस्टिस फॉर द जज, ये किसने लिखी है? रंजन गंगोई ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफी है, इन्हों की लाइफ हिस्टरी के उत्ते इन्होंने खुद ने बुक लिखी है, रंजन गंगोई ने। इस बुक को किसने रिलीज़ किया? इस बुक को रिलीज़ किया है शरद अरविंद बॉबडे ने। ठीक है जी। रंजन गंगोई अगर आप गल करिए 46वें नंबर के चीफ जस्टिस थे। ठीक है जी। इन्हों तो पहले दीपक मिश्रा होंगे सी, दीपक मिश्रा 45वें नंबर के चीफ जस्टिस थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी, एक होर ऑटोबायोग्राफी है एट होम इन द यूनीवर्स। एट होम इन द यूनीवर्स, एट होम इन द यूनीवर्स। इस बुक के राइटर ने बालाकृष्ण माथुर, बालाकृष्ण माथुर, बालाकृष्ण माथुर इस बुक के राइटर। नेक्स्ट है फरहान अख्तर। फरहान अख्तर जो कि एक्टर ने, काफ़ी फेमस एक्टर फरहान अख्तर इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्राइमल रियलिटी। प्राइमल रियलिटी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ने फरहान अख्तर। फरहान अख्तर नूं प्राइमल रियलिटी के ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। इंडियन आर्कीटैक्ट, इंडियन आर्कीटैक्ट बालकृष्ण दोशी, इंडियन आर्कीटैक्ट बालकृष्ण दोशी इज अपॉइंटेड एज विनर ऑफ 2022 रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल है जो इंडियन आर्कीटैक्ट बालकृष्ण दोशी नूं दिता गया by the Royal Institute of British Architecture, by the Royal Institute of British Architecture। It was started in 1858, 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ब्रिटिश आर्कीटैक्चर जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्कीटैक्चर है इस द्वारा इस अवार्ड नूं दिता जाता है। 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बार दिता गया सी। 2022 ਦਾ रॉयल गोल्ड मैडल बालकृष्ण दोशी नूं दिता गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है एयर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो टेस्टफाइड की गई है सुखोई एयरक्राफ्ट, सुखोई एयरक्राफ्ट तो ITR चंदीपुर उड़ीसा दे विच। बेसिकली इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा है, इत्थों सुखोई एयरक्राफ्ट के जरिए जो एयरक्राफ्ट है फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, इस दे जरिए ब्रह्मोस का एयर वर्जन टेस्ट फाइड किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया ने रशिया के नाल मिलकर डेवलप की सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टैक्नोलॉजी है। इसकी स्ट्राइक रेंज में इंक्रीज़ किया जाए, 270 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज सी इसकी, उस तो बाद 450 करने का टारगेट सी। तो इसके एयर वर्जन, नेवल वर्जन और लैंड वर्जन तीनों ने और एयर वर्जन नूं टेस्ट फाइड किया गया। DRDO has tested vertical launch short range surface to air missile, vertical launch short air surface to air missile integrated test range उड़ीसा तो टेस्ट फाइड की गई। इसी दे नाल ITR उड़ीसा तो
शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ ग्लोबल आर्म्स ट्रेड, इंपॉर्टेंट रहेगा ग्लोबल आर्म्स ट्रेड, इस दी रिपोर्ट के अनुसार यूएसए दी कंपनीज ने टॉप किया एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स दे विच कि सब तो ज़्यादा एक्सपोर्ट आर्म्स का किसने किया, यूएसए दी कंपनीज द्वारा किया गया। इस द्वारा लिस्ट जारी की गई 100 कंपनीज की, जिस दे विच 3 इंडियन कंपनीज शामिल ने, 3 इंडियन कंपनीज इस दे विच नामित की गई। सब तो पहले टॉप 100 दे विच हिंदुस्तान आर्म्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इंडिया दी आर्म्स लिमिटेड जो 42 नंबर पर है। सैकेंड नंबर इस तो इलावा इंडियन ऑर्डीनेंस फैक्ट्री जो कि रिसेंटली बंद हो गई है। इंडियन ऑर्डीनेंस फैक्ट्री ये बेसिकली इन्होंने कोविड टाइम का डाटा चक्या है 2019-20 तक का, ठीक है जी 20 तक का कह सकते हैं, 2020 तक का ये डाटा के अनुसार। दूसरे नंबर पर इंडियन ऑर्डीनेंस फैक्ट्री रही है 60 नंबर पर, और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स 66 नंबर पर रही है। नेक्स्ट है आरबीआई हैज़ रिलीज्ड इट्स बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई द्वारा बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई, जिस दे अनुसार जो रेट्स ने बिल्कुल भी चेंज नहीं किए गए, जो पहले रेट से वही रेट रखे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर भी रेट्स पूछ ले जाते हैं, ठीक है। बाय मंथली है यानी कि साल के 6 बार इसनों जारी किया जाता है। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, MSF मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी 4.25%, बैंक रेट BR बैंक रेट 4.25 ये हमेशा सेम रहते हैं। CRR 4% और SLR की गल करते हैं 18% है। स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशो CRR कैश रिजर्व रेशो। इस दे विच कमेटी है बेसिकली जो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है, इस दे विच कमेटी है जिस दे विच 6 मैंबरस ने, 6 मैंबरस दे विचों 3 और 3 का ग्रुप है, 3 आरबीआई वालों अपॉइंट किए जाते हैं और जो 3 मैंबरस होंगे ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों अपॉइंट किए जाते, ठीक है जी। तो जो आरबीआई के मैंबरस ने वो किहड़े ने, मृदुल के सागर आरबीआई वालों अपॉइंट किए गए हैं। माइकल डी पात्रा जो कि गवर्नर ने डेप्यूटी गवर्नर ने, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स के विचों एक ने माइकल डी पात्रा, और तीसरा नाम है शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर ने आरबीआई के। ये 3 परसनस आरबीआई वालों अपॉइंट किए गए हुए। इस तो इलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों जो मैंबर ने वो कौन ने, शशांक भीड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा, शशांक भीड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा। ये बेसिकली काफ़ी टाइम बाद चेंज किए जाते हैं, तकरीबन 2 या 3 साल का टैन्योर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परसनस का। तो रिसेंटली चेंज किए गए थे, 6 महीने हुए ने इन्हों, तो यह नाम अपने लिए सिंपली याद रखेंगे। नेक्स्ट है JNK बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक है जो इसने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एम पे डिलाइट का रिवाइज्ड वर्जन लॉन्च किया। नेक्स्ट है फ्रांस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसके अनुसार टॉप 1% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, टॉप 1% जो इंडिया की पॉपुलेशन है एक 1/5 तो ज़्यादा है जिसकी टोटल नेशनल इनकम ऑफ 2021। मतलब है कि इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि जो अमीर लोग ने वो काफ़ी ज़्यादा अमीर ने, जो गरीब ने वो काफ़ी ज़्यादा गरीब ने। इस तरीके नाल कि जो 1% जो ज़्यादा अमीर पॉपुलेशन टॉप 1% है वो तकरीबन इंडिया की टोटल नेशनल इनकम है जो उसका 1/5 हिस्सा रखी बैठी है, ठीक है जी। कि 100 के विचों 1% पॉपुलेशन 1/5 हिस्सा यानी कि 20% की नेशनल इनकम नूं रखी बैठी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडिया सरपास्ड ब्राज़ील इन फूड एक्सपोर्ट्स टू द लीग ऑफ अरब स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 ईयर्स। अरब कंट्रीज़ ने चाहे वो इजिप्ट हो गया, चाहे यूएई हो गया, या सऊदी अरेबिया हो गया, या डिफरेंट अरब कंट्रीज़ और भी जॉर्डन हो गया, जिन्नियां भी ने, इन्हां कंट्रीज़ नूं फूड एक्सपोर्ट्स के मामले इंडिया पहले नंबर पर, ब्राज़ील नूं पिछे छड्ड के पहले नंबर पर आ गया, ठीक है जी, पहली बार 15 सालों के विच।
नेक्स्ट है Forbes has released 2021 World Most 100 Powerful Women's List। वर्ल्ड ਦੀ ਮੋਸਟ 100 ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫੋਰਬਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਮੈਕੈਂਜੀ ਸਕੌਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दूसरे नंबर पर कमला हैरिस रहे ने और तीसरे नंबर पर क्रिस्टली ने लगाडे। इंडिया की गल करते हैं निर्मला सीतारमन लगातार तीसरी बार इस रिपोर्ट के शामिल हुए ने। पिछली इस बार 37वें नंबर पर सी, लास्ट ईयर आई थिंक 34वें नंबर पर सी। इस साल ये 37वें नंबर पर रहे ने और थर्ड टाइम ये इन्हां दा तीसरी बार है लगातार। 2019 की लिस्ट के भी शामिल से, 20 की लिस्ट के भी और 21 की लिस्ट के। रोशनी नादर मल्होत्रा 52वें नंबर पर रहे ने। किरण मजूमदार शॉ 72वें नंबर पर। रोशनी नादर मल्होत्रा 52वें नंबर पर, किरण मजूमदार शॉ 72वें नंबर पर रहे। नेक्स्ट A new report by Reporters Without Borders द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि जो चाइना ऐसी कंट्री है जिहड़ी वर्ल्ड की बिगेस्ट कैप्टर है जर्नलिस्ट दी, विद एट लीस्ट 127 रिपोर्टर्स करंटली डिटेन्ड। कि रिपोर्टर्स नूं रिपोर्ट करन, अगर रिपोर्टर्स कुछ रिपोर्ट करते हैं तो उन्होंने जेल दे विच पा दिता जाता है। ऐसी कंट्री चाइना है। चाइना ने दे कोल सब तो ज़्यादा इस टाइम करंटली जेल दे विच जो जर्नलिस्ट ने 127 ने। ठीक है जी। भारती एयरटेल जो कंपनी है, इसने एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की। एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। किस दे नाल मिलके? इन्वेस्ट इंडिया दे नाल मिलके। किस नाल मिलके की है? इन्वेस्ट इंडिया दे नाल मिलके। विद एट लीस्ट अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी कंपनीज डेमोनस्ट्रेट डिफरेंशिएट सॉल्यूशंस, ताकि डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जा सकन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है जी। भारती एयरटेल ने 1995 के बनाया गया सी, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है और सुनील भारती मित्तल इसके हैड ने। नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ओवर 1 लाख पीपल इज गेटिंग पेंशन डायरैक्टली इनटू द बैंक थ्रू संपन्न प्रोजेक्ट। कहा जा रहा है कि 1 लाख तो ज़्यादा लोग संपन्न प्रोजेक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट तो पेंशन ले रहे हैं। संपन्न प्रोजेक्ट का मतलब है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो इन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया G20 इंटरनेशनल सैमीनार के। G20 के इंटरनेशनल सैमीनार के जिसनों बाली के कंडक्ट किया गया सी अंडर प्रेजिडेंसी ऑफ इंडोनेशिया की प्रेजिडेंसी के अंडर। ठीक है जी। नेक्स्ट गूगल हैज़ अनाउंस्ड इट्स टॉप सर्चिज ऑफ 2021 लिस्ट। 2021 की टॉप सर्चिज की लिस्ट गूगल ने जारी की कि सब तो ज़्यादा सर्च किहड़ा वर्ड किया गया। ठीक है जी। तो ग्लोबली इसनों IPL ने सर्च किया गया। सब तो पहले नंबर पर IPL रहा। दूसरे नंबर पर कोविन एप्लीकेशन के बारे हर एक नूं पता होएगा। प्लेटफॉर्म है इंडिया का प्लेटफॉर्म जो कि जारी बनाया गया सी। तीसरे नंबर पर रहा ICC T20 वर्ल्ड कप। ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि UAE दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है जी। इंडिया वालों अगर आप गल करते हैं वर्ल्ड लैवल पर सर्च किए गए, इंडिया के सब तो ज़्यादा सर्च किया गया नीरज चोपड़ा का नाम। दूसरे नंबर पर विकी कौशल का नाम सर्च किया गया और तीसरे नंबर पर शहनाज गिल का नाम। ठीक है जी। टॉप सर्चिज ऑफ 2021। नेक्स्ट है नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस कलैक्शन इसकी शुरुआत की। नीति आयोग द्वारा CESL के नाल मिलके इसकी शुरुआत की। बेसिकली बस कलैक्शन सिस्टम नूं इंप्रूव करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के नाल मिलके, CESL के नाल मिलके। नेक्स्ट है नीति आयोग ने ही प्लान किया टू एस्टैब्लिश 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएगियां। हजार अटल टिंकरिंग लैब्स कित्थे बनाएंगे? जम्मू एंड कश्मीर दे विच। नीति आयोग 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स
कित्थे बनाएगा? जम्मू कश्मीर दे विच। नीति आयोग की गल करते हैं 2015 दे विच नीति आयोग बनाया गया। राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन ने। अमिताभ कांत इसके CEO ने। कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण के लिए, इसका टारगेट सीगा 2022 का हाउसिंग फॉर ऑल का। इसनू 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। इसनू 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिता गया। कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड फंडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ केन बेटवा इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट। केन और बेटवा जो रिवर्स ने, केन और बेटवा जो इंपोर्टेंट रिवर्स ने, इन्हां दी इंटरलिंकिंग दे लई, उन्हां दी इंटरलिंकिंग दे लई जो प्रोजेक्ट है इसनू अप्रूवल दे दी गई है। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स दे विच केन और बेटवा रिवर्स की लोकेशन दसनी है कि किहड़ी स्टेट्स दे विच ने। पावर मिनिस्ट्री जो कि RK सिंह दे कोल है, आरा बिहार तो लोक सभा MP ने। इन्होंने एनर्जी कंजरवेशन वीक अनाउंस किया। एनर्जी कंजरवेशन वीक 8 तो लैके 14 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर। नेक्स्ट है एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन। भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, या कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान। किस दे लई? ताकि जो किसी दी मदर टंग है उस तो इलावा बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस नूं उसनूं सिखाउण दे लई। इस दे विच बेसिकली 100 अगर गल करते हैं सेंटेंसिस रखे गए ने 22 अलग अलग लैंग्वेजेस दे विच, 22 अलग अलग लैंग्वेजेस दे विच एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस में सिखाया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से 100 सेंटेंस 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस दे विच लोकां नूं सिखाए जाएंगे जो डेली यूज दे सेंटेंस ने। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड सरयू नहार नेशनल प्रोजेक्ट। सरयू नहार नेशनल प्रोजेक्ट है जो सरयू रिवर है, बेसिकली सरयू के किनारे अयोध्या लोकेटेड है, सरयू रिवर के किनारे। इस दे लई जो नेशनल प्रोजेक्ट है बलरामपुर यूपी दे विच, बलरामपुर यूपी दे विच इसनूं इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट है UAE हैज़ डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट 4.5 आवर्स वीक वर्क फ्रॉम 1 जनवरी 2022। एक दिन दे विच 4.5 घंटे काम करन दा, एक हफ्ते दे विच 4.5 घंटे काम करन दा 1 जनवरी 2022 तो अनाउंसमेंट की गई है UAE द्वारा। कित्थे द्वारा? UAE द्वारा अपने एम्पलॉयज़ दे लई। साउथ कोरिया हैज़ अनवील्ड अ मॉडल फॉर हाइपरसोनिक वेपन प्रोटोटाइप हाईकोर नाम का वैपन किस कंट्री का है? साउथ कोरिया। ठीक है जी। क्वेश्चन डायरैक्टली पूछे जाते हैं कि रफाल किस कंट्री के एयरक्राफ्ट ने, अपाचे चिनूक किस कंट्री के हैलीकॉप्टर्स ने। इसी तरीके हाईकोर नाम की मिसाइल या वैपन किस कंट्री का है? साउथ कोरिया। न्यूजीलैंड पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने 14 साल के बच्चों को सिगरेट खरीदने तो बैन किए। 14 साल तक के बच्चों को सिगरेट खरीदने तो बैन किए। USA has named 12 new anti-corruption champions this year under theme combating corruption। आप डिस्कस किया सी एंटी करप्शन डे, उसी दे रिस्पैक्ट दे विच USA द्वारा एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड दिते जाते हैं। 12 लोगों को इस साल अवार्ड दिता गया है। ठीक है जी। इंडिया के किसी भी परसन को अवार्ड नहीं मिले, लेकिन एक नाम नॉमिनेट जरूर किया गया सी। तो नाम याद रखांगे अंजलि भारद्वाज फ्रॉम इंडिया। अंजलि भारद्वाज वाज नॉमिनेटेड बट नॉट गिवन अवार्ड। याद रखांगे अंजलि भारद्वाज नूं नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट है काजहू वैली वेटलैंड नूं 16th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर की गई है तमिलनाडु की 16th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर की गई है काजहू वैली वेटलैंड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है काजहू वैली वेटलैंड कित्थे लोकेटेड है। ठीक है। तो याद रखेंगे तमिलनाडु। नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड
हैदरपुर वैटलैंड कित्थे लोकेटेड है, यूपी दे विच लोकेटेड है और इसनूं 47th रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन पूछी जाती है तो 1971 है। सब तो पहले रामसर कन्वेंशन 1971, रामसर एक प्लेस है जो ईरान दे विच है, उसी के नाम के उत्ते रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट का दर्जा दिता गया। ठीक है जी। इंडिया की पहली रामसर साइट चिल्का लेक है उड़ीसा की। इसी तरीके नाल यूपी दी हैदरपुर वैटलैंड नूं 47th रामसर साइट का दर्जा दिता गया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनाउंस किया गया कि होम लोन्स नूं खत्म करनगे OTS स्कीम के अंदर। OTS स्कीम, वन टाइम सैटलमेंट स्कीम के अंदर होम लोन्स नूं खत्म किया जाएगा, वेव ऑफ किया जाएगा। कित्थे द्वारा? आंध्र प्रदेश द्वारा। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड अ मेमोरियल म्यूजियम ऑन द ऑनर ऑफ मार्टियर्स ऑफ 1857 इन अंबाला। अंबाला दे 1857 के मार्टियर्स दे 1857 के शहीदों के लिए 1857 के शहीदों के लिए अंबाला दे विच मैमोरीयल बनाया जाएगा। किस द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा। वेस्ट बंगाल स्टार्टेड पालकी एंबुलेंस सर्विसेज इन बक्सा। बेसिकली जो बक्सा वाला एरिया है वेस्ट बंगाल का, इत्थे की है कि इत्थे काफ़ी हिली एरिया है जिथे प्रॉपर मैडिकल सर्विसेज नहीं पहुँच सकती। इस करके पालकी एंबुलेंस सर्विसेज की शुरुआत कित्थे हुई है? वेस्ट बंगाल दे विच। सिंपली याद रखांगे, पालकी एंबुलेंस सर्विसेज की शुरुआत कित्थे हुई है? वेस्ट बंगाल दे विच। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ अज दे सैशन दे विच आपां डिस्कस कीतियां ने। हर एक न्यूज़ नूं रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज कर लियो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।